अयोध्या के रंग, यही कहा जाता है। अयोध्या में बहुत सारे रंग हैं, लेकिन ये जो ग्रुप है बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये महिलाओं का ग्रुप है और ये महिला साध्वी हैं। जी, आप सब लोग अपने बारे में बताइए और आप लोग यहाँ क्यों आई हैं? सभी को जय श्री राम। मेरा नाम साध्वी प्रज्ञा भारती है। हम सभी की गुरु माँ है परम पूजनीय माँ आशुतोष शांभरी जी। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और उसी के उपलक्ष्य में हम सभी यहाँ आए हैं। और जो हमारी गुरु माँ हैं उसके माध्यम से भी हम बताएंगे, क्योंकि सभी हमसे प्रश्न करते हैं आके। फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है कि ये दोनों दीदी लंदन से हैं। अच्छा। तो वो सभी प्रश्न करते हैं कि ये कैसे संभव हुआ, कि आप लोगों ने कैसे ये सब छोड़ के आप संन्यास में आ गए हैं। तो उन सबको मैं बताना चाहूँगी कि जब एक पूर्ण सदगुरु आपकी लाइफ में एंटर करते हैं, जैसे रामकृष्ण परमहंस जी ने एंटर किया स्वामी विवेकानंद जी की लाइफ में, देन एवरीथिंग गेट्स चेंज, सब बदल। So you are from? I'm from Delhi. You're from Delhi. I'm from And you tell me about yourself. When did you decide to take this form, to take this, to move completely to this kind of life? So my name is Dr. Sadhvi Avakshi Bharti and I'm a disciple of Her Holiness Ma Ashutosh Shambhri Ji. So I had met Ma about 2 years ago, and by met I mean that I had many divine experiences while I was in the UK, and I was being pulled towards Lucknow, towards Bharat, to come here because there So you was studied in UK? Yes, I studied in the UK. I'm a doctor there. So I'm a doctor. I did psychology out there. I worked for a government department. So I had a really, you could say, quite a great lifestyle. Absolutely anything that you can think of, I had. So that was my lifestyle out there. And when did you decide to give it all up? I think I decided the moment I saw my Ma Ashutosh Shambhri Ji. I don't think I realized it so much but she showed me what true life really is. Because don't you think that the life that we're living now is just so stressful? It's so difficult. And what she did is she showed me what the true meaning of life is. Because it even says in the Guru Bani, Bhai parapat manukh de huriya govind milan ki e teri badiya. Avar akaaj tere kite na kaam mil saad sangat paj keval naam. It says that you've been given this human life to meet God. And nothing else is of any value. Sad sang. So you need to come to a certain sad that can give you that sang that can show you God. So then Paj Keval Naam. All you're here to do is to pray to God. But the modern world thinks, what do you mean if I sit and pray all day, how will anything get done? But the truth is, how did Ram Ji, who was Lord himself, he followed a Guru Shish Parampara, how was all his karya done? Because he was Samarpit in Vashishthis. When did you move to India? I came about a year and a half ago. And then you have been I've been in sannyas for about a year or so now, and it was an easy decision to make. I would just like to say it through a very short story, because someone asked Ramkrishna Paramahansa Ji that, they made a comment that, oh wow, I think you're so amazing that you've managed to give up all this world just to do some tyag tapasya. That's what they think sannyas is. And he said, well, I actually bow down to you that you could give up the infinite Lord for such a small world. I only gave up a small world. You gave up a small world. अपने बारे में बताइए। जी, मेरा नाम साध्वी ज्योति प्रभा भारती है। मेरी गुरु माँ है परम पूजनीय परम वंदनीय माँ आशुतोष शांभरी जी। आप लोग सब उसी? जी, हम सब उन्हीं की शिष्य आए हैं। सभी लोग यहाँ आए हैं। और मेरी गुरु माँ, जैसा कि सब जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष सन्यासियों की भूमि रही है शुरू से। इस भारत भूमि ही सन्यासी की त्याग तपस्या की भूमि रही है। प्रभु श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, महर्षि अरविंदो घोष, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी, ऐसे अनेकों सन्यासी हुए हैं यहाँ, जिन्होंने अपने भारत की संस्कृति का परचम लहराया है। आज ज़रूरत है पुनः इस समाज को उन्हीं सन्यासियों की, उन्हीं ऐसे तपस्वियों की, साधुओं की जो अपने भारत की संस्कृति और सभ्यता को पुनः उत्थान पर लेकर जाएं। आज विदेशों में हमारे भारत का परचम लहरा रहा है। भगवान श्री राम की कृपा है और मेरी गुरु माँ की कृपा है जो आज विदेशों में भी हमारे भारत की संस्कृति को अपनाया जा रहा है। लेकिन भारत के लोग अपनी संस्कृति को भूल गए हैं। कैसे भूल गए? यहाँ पर अभी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो भोपाल से आए हैं, जो दूर दूर से आए हैं, जो जबलपुर से आए हैं, जो हिंदुस्तान के बाहर से भी आए हैं, नेपाल से आए हैं, और वो लोग सब यहाँ पर जो माहौल है उसमें एकदम घुल मिल गए हैं। ये आज का माहौल है, ये अब का माहौल है। लेकिन आप हमें 2 दशक पहले जाइए पीछे, तो क्या था? हमारी संस्कृति को याद करता था। अयोध्या भूमि एक शव के मानिंद थी, एक छोटी सी नगरी थी जिसको कोई शायद बस इसलिए याद आता था कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। हमारे राम लला टेंट में थे, उनके लिए सब धरती गोपाल की, लेकिन गोपाल के लिए 5 गज जमीन नहीं था हमारे पास। लेकिन आज एक विशाल मंदिर बन गया उनके लिए। ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है। आप लोग अयोध्या कब आई? हम लोग अयोध्या
यहीं के वासी है, हम लोग तो यहीं रहते हैं, साधु संतों की नगरी है, यहीं पे रहते हैं, हमारा आश्रम यहीं है। Yeah, and the ashram is here. We have a main head office in Lucknow as well. And we also have branches in the UK as well. Okay. Tell me about yourself. Ah, And are you two related or associated in some way? Friends who may have influenced each other? Well, Jai Shri Ram, my name is Saint Gabrielle and I'm a disciple of Her Holiness Mahashito Shambhiji Ji. And yes, we were sisters before, but now she's my Guru sister, right? And that relationship changed because of my Guru Ma. Because you can tell by my skin color, I'm Indian, but I was very Western. I was very involved in the world. I was a biologist. I worked in a government department. I had that sort of lifestyle. But I'd completely forgotten Hindu Sanskriti. It's only when I met my Buddhan Satguru, when I met Her Holiness Mahashito Shambhiji Ji, that she taught me about Sanskriti. She taught me about Ved Mantir. She taught me about Lord Ram. I didn't know who Lord Ram was. But she taught me all of this and she made me aware that all of these stories that we hear, right? Because what they say in the West is those are old stories, right? Thousands and thousands of years old. But they're relevant now. Why? What did your parents say when you decided to take this I route? would like to add to that. Our parents, they are also in Mahashito Shambhiji Ji. Okay. So they're the ones that have been doing all the prachar in the UK and launching things there as well. Okay. And it was them, it was my mother who was also very prominent in taking us towards spirituality. But the thing is, this is a great thing. This is a message I want to give to everyone here about Sanskriti. That it's a parent's responsibility to give that information, to give that to their children. It's really important. But to take it to the highest level, you still need a Purana Guru. You still need someone who can take you to the ends. Because at that point, I had my worldly mother. She brought me to my godly mother. And my godly mother is the one who showed me how to live a true बिल्कुल, जैसे life. शिवाजी को उनकी जीजाबाई ने उनके गुरु राम समर्थ जी के हाथों में सौंपा, तो शिवाजी महाराज कहलाएं, छत्रपति शिवाजी कहलाएं। इतिहास गवाह है कि एक भी युद्ध उन्होंने नहीं जीता। मुझे बताइए, आपने रामायण पढ़ी होगी, तो उस जमाने की अयोध्या और आज की अयोध्या कैसी लग रही है? देखिए, रामायण जो काव्य है वो एक क्रांतिकारी काव्य है ना। उस जमाने की अयोध्या, आज की जो अयोध्या है, उसमें अंतर तो है क्योंकि वो त्रेता युग था, ये नवयुग है, इसमें सब कुछ नया है। त्रेता युग में जो था वो नहीं है, लेकिन उससे बहुत आगे की बात है। रामायण का जो काव्य है, जैसे देखिए हमारा मानव जीवन है, मनुष्य का तन 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, ठीक है। रामायण जिसकी घटना बताते हैं, कैसे बोला जाता है, संयोग देखिए, वायुपुत्र हनुमान ने जल के रास्ते माता सीता का पता लगाया, ठीक। वहाँ जाके अंगद ने पृथ्वी में पैर जमा दिए, उसके बाद भगवान श्री राम ने अग्निबाण से रावण का संहार किया और रावण को खत्म किया। फिर भगवान आकाश मार्ग से अयोध्या आए। ये 5 तत्व हमारे श्री रामायण में लिखा है। फिर इसलिए कहते हैं ना, रामायण सिर्फ कहानी नहीं है 7 कांड की, ये कहानी है पूरे ब्रह्मांड की, और ब्रह्मांड साक्षी है कि हमारे राम सही है, हमारे राम यथार्थ है, हमारे रामायण। आपको मैं बताना चाहूँगी कि जिन साध्वी बहनों को आप सभी देख रहे हैं और जिन गुरु माँ परम पूजनीय माँ आशुतोष शामरी जी के बारे में आप देख रहे हैं, एक संदेश आपको बताना चाहूँगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी गुरु माँ परम पूजनीय माँ आशुतोष शामरी जी पिछले 1.5 महीने से समाधि में है, इस संकल्प के साथ कि सर श्री आशुतोष महाराज जी जो 2014 में समाधि में चले गए थे, 10 ईयर्स हो चुके हैं, वो लौटे नहीं हैं। माँ समाधिष्ठ है इस संकल्प के साथ कि वो सर श्री आशुतोष महाराज जी को समाधि से लौटाए। मुझे अब कुछ सुनाइए और उसके बाद ये चर्चा हम खत्म करते हैं। आइए मिलके सुनाएं। हमारे आज मानव समाज की जो स्थिति है, हमने वेदों के मार्ग को छोड़ दिया, हमने शास्त्रों को पढ़ना छोड़ दिया, हमने गीता को पढ़ना छोड़ दिया, इस कारण से हमारी ये स्थिति है। तो हमारे संतों महापुरुषों ने क्या कहा है, वेदों की वाणी पर अब तुम ध्यान दो, उनके गौरव को अंतर स्थान दो, तुम जिनकी वंशज जिनकी संतान हो। वेदों में अमृतस्य पुत्रः कहा गया है हम लोगों को, और हाँ, हम गर्व से कहते हैं कि हम अमृत की संतान हैं, हमें वो अमृत मिला है। इसीलिए 2 लाइन, वेदों की वाणी पर अब तुम ध्यान दो, उनके गौरव को अंतर स्थान दो, तुम जिनकी वंशज जिनकी संतान होकर ध्रुव उसे पूरा सम्मान दो, युग दृष्टा ही पथ भूलों को समझा सकता है,
युग दृष्टा ही पथ भूलों को समझा सकता है, वर्तमान को आत्मज्ञान की आवश्यकता है, वर्तमान को आत्मज्ञान की आवश्यकता है। इसलिए सभी आत्मज्ञान को प्राप्त करो जो प्रभु श्री राम ने किया। श्री राम ऐसे नहीं हुए, गुरु वशिष्ठ को अपने जीवन में लाए तब जाके श्री राम प्रभु श्री राम कहलाए। भगवान श्री कृष्ण ऐसे नहीं कहलाए, उनके गुरु दुर्वासा जी थे जिन्होंने भगवान को भगवान की पदवी दिलाई। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि आप उस ईश्वर तक पहुंचो तो एक पूर्ण सतगुरु का सानिध्य प्राप्त करो जो आपके भीतर ईश्वर का दर्शन करा दे। आपको बहुत ज्ञान है, संतान से मिला, बहुत ज्ञान है और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।